Hello students, welcome to One Day Law Revision, Module 8, Foreign Investment Laws. Let's quickly go through synopsis first. In this module, we will cover Foreign Exchange Management Act 1999, Regulation and Management of Foreign Exchange, Contravention and Penalties in FEMA, Adjudication and Appeal, Directorate and Enforcement, Inbound and Outbound Investment in India, Setting up of joint ventures and wholly owned subsidiary in India and outside India, regulations of foreign institutional investors, foreign portfolio investors in India, participatory note. So let's get started. Regulation and management of foreign exchange. Section number 3, dealing in foreign exchange. FEMA ये बोलता है कि विदाउट परमिशन ऑफ RBI, विदाउट जनरल या स्पेशल परमिशन ऑफ RBI, नो पर्सन शैल कोई भी पर्सन RBI की परमिशन के बिना किसी भी फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी में डील नहीं कर सकता है, उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है. हु इज़ नॉट एन ऑथराइज्ड पर्सन मतलब जिसको खुद RBI ने परमिशन दी है, वो पर्सन छोड़ के कोई और पर्सन फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी में डील नहीं कर सकता. वो कोई भी पेमेंट नहीं कर सकता टू अ पर्सन आउटसाइड इंडिया. पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को वो कोई पेमेंट नहीं कर सकता. किसी पर्सन से वो पेमेंट रिसीव नहीं कर सकता. किससे? फ्रॉम पर्सन आउटसाइड इंडिया विदाउट द परमिशन ऑफ RBI. एंटर इनटू अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया in connection with or in association with acquisition or creation or transfer of right to acquire any asset outside India. मतलब वो ऐसे किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं कर सकता है जहाँ कोई एसेट आउटसाइड इंडिया अक्वायर की जा रही हो. सो इन ऑल दिस ट्रांजैक्शंस RBI की परमिशन लगती है. तुम विदाउट ऑथराइज्ड पर्सन ये ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हो. सेक्शन नंबर 4, होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. कोई भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब जो इंडियन ओरिजिन का है या जो 182 डेज से इंडिया में रह रहा था, ऐसा कोई पर्सन कोई भी फॉरेन एक्सचेंज को अक्वायर, होल्ड, ओन, पजेस या उसमें डील नहीं कर सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ RBI टू एनी पर्सन और प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया. करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन सेक्शन 5. अब हम देखेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में 2 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. सो सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस. सेक्शन 2 सबसेक्शन J of FEMA defines current account transaction as a transaction other than capital account transaction and without prejudice to the generality of the foregoing, such transaction includes. So it is an inclusive definition. It includes payment in connection with foreign trade, other current businesses, services, short-term banking and credit facility in the ordinary course of business. तो current account transaction क्या है? जो other than capital account transaction है और जहाँ पे payment है in the ordinary course of business, या payments due as interest on loan or as net income from investment. या तो interest on loan है या net income from investment है. And remittance for living expense of parents, spouse and children residing abroad, and expense in connection with foreign travel, education and medical care of parents, spouse and children. तो ये जो छोटे छोटे expenses होते हैं, these are all included as in current account transactions. Any person may sell or draw foreign exchange to or from an authorized person if such sale or drawal is a current account transaction. जब ऐसा कोई current account transaction है तो कोई भी person authorized person से foreign currency withdraw कर सकता है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में विद द कंसल्टेशन ऑफ RBI इस पे कुछ रेस्ट्रिक्शन स्पेसिफिकली लगा सकती है. नाउ द सेकेंड वन इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. सेक्शन नंबर 6. कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मीन्स अ ट्रांजैक्शन which alters the asset or liability including contingent liability outside India of a PRI. अगर PRI किसी asset liability या contingent liability में इन्वेस्ट कर रहा है या उसके बैलेंस शीट में ये चीज़ें अल्टर हो रही है विच आर आउटसाइड इंडिया, या फिर एसेट लाइबिलिटी इन इंडिया है बट ऑफ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो इन ट्रांजैक्शंस को हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस बोलेंगे. प्लस and includes transaction referred to in section 6 subsection 3. Now what is section 6 subsection 3? Section 6 subsection 3 includes a list of transactions.
लेट्स सी वन बाय वन. ट्रांसफ़र और इशू ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी बाय अ PRI. मतलब एक PRI ने फॉरेन सिक्योरिटी ट्रांसफ़र की. अब ये PRI को कर सकता है या PROI को. अगर फॉरेन सिक्योरिटी ट्रांसफ़र की तो दैट इज़ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. ट्रांसफ़र और इशू ऑफ एनी सिक्योरिटी बाय PROI. अब अगर PROI ने ट्रांसफ़र की तो वो अलग. अब यहाँ पे ट्रांसफ़र और इशू ऑफ सिक्योरिटी और फॉरेन सिक्योरिटी. अब यहाँ पे सिक्योरिटी इंडियन हो सकती है, फॉरेन सिक्योरिटी बाय ब्रांच ऑफिस एजेंसी इन इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. मतलब कौन ट्रांसफ़र कर रहा है, ब्रांच, एजेंसी या ऑफिस जो इंडिया में है. किसका है पर वो, PROI का. बोरोइंग लैंडिंग इन फॉरेन एक्सचेंज इन वॉट एवर नेम कॉल्ड. या फिर बोरोइंग लैंडिंग रुपी में है बट किसको है, बिटवीन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, देन इट इज़ अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. डिपॉजिट किसके बीच में, PRI और PROI के बीच में. एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और होल्डिंग ऑफ करेंसी और करेंसी नोट्स. इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना आउटसाइड इंडिया अदर देन अ लीज नॉट एक्सीडिंग 5 years बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में है और ट्रांसफ़र की है पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ने, तो अगेन इट्स अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. गारंटी श्योरिटी देना बाय PRI ऑन बिहाफ ऑफ PROI या फिर PROI ने देना ऑन बिहाफ ऑफ PRI, सो दैट is capital account transaction. So these were the list of capital account transactions. ये सारे transactions को capital account transaction बोला जाता है and this can be entered only with the prior permission of RBI. Section number 7, export of goods and services. अब export जब भी होता है तो foreign currency में हम deal करते हैं, इसलिए this section is covered under FEMA कि export का जो provision है वो FEMA में cover किया गया है. जब भी कोई एक्सपोर्ट होता है तो जो बंदा एक्सपोर्ट कर रहा है उसको RBI को फर्निश करना पड़ता है, एक फॉर्म में एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि उसने क्या एक्सपोर्ट किया है, उसकी ट्रू वैल्यू क्या है. सो ही हैज़ टू डिस्क्लोज ऑल द ट्रू एंड करेक्ट मटेरियल पर्टिकुलर्स. मटेरियल पर्टिकुलर मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंटिंग व्हाट, फुल एक्सपोर्ट वैल्यू, उसने कितनी वैल्यू का एक्सपोर्ट किया है. अगर पूरी वैल्यू असर्टेनेबल नहीं है तो नॉर्मली मार्केट कंडीशंस को देख के उसकी वैल्यू क्या है आउटसाइड इंडिया, वो वैल्यू उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा. फिर वो RBI को ये सब इंफॉर्मेशन देगा और भी अगर RBI को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वो सबमिट करेगा. RBI में फॉर द पर्पज ऑफ ensuring that full export value of the goods or such reduced value as determined by RBI having regard to prevailing market condition is received without any delay, direct any exporter to comply with such requirement as it deems fit. RBI क्या करेगी, एक्सपोर्टर को डायरेक्ट करेगी कि कैसे वो अमाउंट रिकवर करना है. तो RBI विल हेल्प द एक्सपोर्टर इन रिकवरिंग द अमाउंट विदाउट एनी डिले. फिर एक्सपोर्टर क्या करेगा, एक डिक्लेरेशन फर्निश करेगा RBI को in which he will give the true and correct material particular in relation to payment, कि उसको जो पेमेंट आया वो सारी इन्फॉर्मेशन RBI को वो डिस्क्लोज करेगा. रियलाइजेशन एंड रिपैट्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. जब भी कोई अमाउंट PRI को मिलती है फ्रॉम फॉरेन कंट्री तो वो उस अमाउंट को रियलाइज़ करेगा. ही विल टेक ऑल द रीजनेबल स्टेप्स टू रियलाइज द अमाउंट एंड ही विल रिपैट्रिएट to India such foreign exchange within such period and in such manner as may be specified by RBI. Repatriate means to bring back the currency in India. Exemption from realization and repatriation in certain cases. कुछ केसेस में जो फॉरेन करेंसी है वो हमको रिपैट्रिएट नहीं करना पड़ता है. Now what are these cases? Provision of section 4 and 8 shall not apply to the following, namely possession of foreign currency or foreign coins by any person up to such limit as the RBI में specify. अगर RBI में किसी ट्रांजैक्शन को लेके कोई लिमिट स्पेसिफाइड है और हमारे पास करेंसी उस लिमिट से कम है तो फिर उसको रिपैट्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब रिटर्न बैक करने की ज़रूरत नहीं है. अगर कोई फॉरेन करेंसी अकाउंट है जो कोई पर्सन ऑपरेट कर रहा है बट इट इज़ विद इन द लिमिट स्पेसिफाइड बाय RBI तो फिर उसको रिपैट्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है. अगर किसी इंसान ने फॉरेन करेंसी एक्वायर किए बिफोर 8 जुलाई 1947 या उसको कोई इनकम हुई है फ्रॉम पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इन पर्सुएंस ऑफ जनरल और स्पेशल परमिशन ग्रांटेड बाय RBI तो फिर वो उस करेंसी को रिपैट्रिएट नहीं करेगा. अगर फॉरेन एक्सचेंज है किसी
PRI के पास, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के पास, बाय वे ऑफ गिफ्ट और इनहेरिटेंस, जो उसको कहाँ से मिला है, फ्रॉम बाय पर्सन रेफर्ड टू इन क्लॉज सी। क्लॉज सी में कौन सा पर्सन रेफर्ड है, जिसको फॉरेन एक्सचेंज मिला था बिफोर 8 जुलाई 1947। इन दैट केस जिसको वो अमाउंट उसने गिफ्ट या इनहेरिटेंस बोल के दिया है, दैट पर्सन विल ऑल्सो नॉट हैव टू रिपैट्रिएट द अमाउंट। अगर फॉरेन एक्सचेंज एम्प्लॉयमेंट में, बिजनेस में, ट्रेड, वोकेशन, सर्विस, ऑनरेरियम, गिफ्ट, इनहेरिटेंस या लेजिटिमेट मीन्स से मिला है जो RBI की लिमिट के अंदर है, तो देन अगेन उसको रिपैट्रिएट नहीं करना है, या फिर सच अदर रिसीट्स इन फॉरेन एक्सचेंज एज द RBI में स्पेसिफाई। नाउ लेट्स सी कॉन्ट्रावेंशंस एंड पेनल्टीज अंडर FEMA। सेक्शन 11, अगर ऑथराइज्ड पर्सन ने, ऑथराइज्ड पर्सन वो होता है जो RBI अपॉइंट करती है, जो फॉरेन करेंसी में डील करने में हम जैसे इंडिविजुअल की हेल्प करता है, एंड वी ओनली डील इन फॉरेन करेंसी विथ ऑथराइज्ड पर्सन। अगर ऑथराइज्ड पर्सन ने RBI के किसी डायरेक्शन को कॉन्ट्रावेन किया या RBI को कोई रिटर्न फाइल नहीं किया, तो उसके लिए पेनल्टी है अप टू 10,000 रुपीज़, और अगर कंटिन्यूइंग ऑफेंस है तो एडिशनल पेनल्टी अप टू 2,000 पर डे। सो इट इज़ 10,000 प्लस 2,000 पर डे। Section 13, of any provision of the act or any rule, regulation, notification, direction or order or of any condition subject to which an authorization is issued। अगर कोई भी एक्ट के रिलेटेड प्रोविजन है, रूल्स है, रेगुलेशंस है जिसको तुमने फॉलो नहीं किया, तो पेनल्टीज अप टू 3 times द सम इन्वॉल्व्ड। जितना भी सम तुमने छुपाया है या जिसको लेके तुमने लॉ तोड़ा है, उसका 3 times ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व्ड। अगर क्वान्टिफाइबल है तो, अगर क्वान्टिफाइबल नहीं है तो 2 lakhs प्लस अगर कंटिन्यूइंग ऑफेंस है तो 5,000 पर डे। सेक्शन 13 सबसेक्शन 1A एंड 13(1)(c), अगर तुमने कोई फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी या इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया एक्वायर की है ऑफ द एग्रीगेट वैल्यू एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द प्रोविजन टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37A, तो फिर वहाँ पे पेनल्टी है 3 times ऑफ अमाउंट। फिर जो भी वैल्यू तुमने एक्वायर की है, जो भी लैंड या फॉरेन सिक्योरिटी, फॉरेन एक्सचेंज, वो भी कॉन्फिस्केट हो जाएगा। कॉन्फिस्केशन ऑफ द वैल्यू इक्विवेलेंट टू फॉरेन एसेट इन्वॉल्व्ड इन कॉन्ट्रावेंशन सिचुएटेड इन इंडिया। और फिर यहाँ पे जेल भी है। जेल कितना है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years with a fine if the amount of contravention exceeds the threshold limit। सेक्शन 14, अभी ये जो पेनल्टी देखी 11, 13, 13(1)(a), 13(1)(c), अगर तुमने ये पेनल्टी नहीं पे की, फेलियर टू पे पेनल्टी एज अबव, और अगर वो पेनल्टी इज एक्सीडिंग 1 crore, तो फिर वहाँ पे सिविल इम्प्रिजनमेंट है अप टू 3 years। कितना जेल है, अप टू 3 years। और अगर पेनल्टी 1 crore से नीचे है एंड यू डिड नॉट पे इट इन 90 days, तो फिर इम्प्रिजनमेंट है अप टू 6 months। तो यहाँ 90 days का टाइम लिमिट है। अगर तुमने पे नहीं किया एंड पेनल्टी 1 crore से ऊपर है तो अप टू 3 years का जेल, और अगर 1 crore से नीचे है तो अप टू 6 months का जेल। सो दिस इज कॉन्ट्रावेंशन एंड पेनल्टी अंडर FEMA। अब हम देखेंगे ऑब्लिगेशंस, अपील रिलेटेड टाइम लिमिट्स। फुल पेनल्टी कितने टाइम में पे करना है, 90 days में, नहीं तो क्या हो जाता है, जेल होती है अप टू 3 years। अगर पेनल्टी 1 crore से ज़्यादा है, 1 crore से कम है तो अप टू 6 months। ये कहाँ देखा था, सेक्शन नंबर 14 में, और 14 ही टाइम लिमिट की भी बात करता है, दैट इज़ विद इन 90 days। सेक्शन 15 कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। कंपाउंडिंग कितने दिन में हो सकता है, विद इन 180 days ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन बाय डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट और RBI। मतलब जिस दिन RBI ने ऑर्डर पास किया, तुमको वो एप्लीकेशन मिला, उसके 180 days में तुम कंपाउंडिंग कर सकते हो। सेक्शन 16 कंप्लेंट अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 टू बी डेल्ट बाय एडजुडिकेटेड अथॉरिटी। जब भी कोई कंप्लेन होती है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो कंप्लेन मिलते से 1 साल के अंदर वो कंप्लेन को डील करेगा। फिर अब ऑर्डर पास कर दिया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, एंड इफ़ यू वांट टू अपील, यहाँ अपील करना है तुमको, तो तुम जा सकते हो स्पेशल डायरेक्टर के पास। कितने दिन में, विद इन 45 days। जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से ऑर्डर पास हुआ उसके 45 days के अंदर तुम स्पेशल डायरेक्टर के पास जा सकते हो।
If you are not satisfied, again in 45 days you can go to the appellate tribunal, that is Foreign Exchange Management Appellate Tribunal, FEMAT बोलते हैं उसको. Again if you are not satisfied, पहले तो FEMAT उसको डिस्पोज करेगा 180 डेज में, and again if you are not satisfied you can go to High Court within 60 days from the order, and then High Court will resolve it on suo motu basis. सो दिस इज़ द प्रोसेस. सबसे पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करता है, 45 डेज़ में यू कैन गो टू स्पेशल डायरेक्टर. उसके 45 डेज़ बाद के अंदर यू कैन गो टू फेमैट फॉर अपील. फेमैट 180 डेज़ के अंदर अपील को डिस्पोज ऑफ करेगा, एंड ऑर्डर पास होने के बाद तुम हाई कोर्ट के पास जा सकते हो विद इन 60 डेज़, और हाई कोर्ट डिसीजन सो मोटो देता है. डायरेक्टोरेट एंड एनफोर्समेंट. डायरेक्टोरेट एंड एनफोर्समेंट सेक्शन 36. सेंट्रल गवर्नमेंट एक बॉडी एस्टैब्लिश करता है, दैट इज़ डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, जहाँ डायरेक्टर होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, क्लास ऑफ ऑफिसर्स होते हैं, जिनको ऑफिसर्स ऑफ एनफोर्समेंट बोला जाता है. नाउ व्हाई दिस बॉडी इज़ अपॉइंटेड? टू एक्सरसाइज द पावर एंड डिस्चार्ज द ड्यूटीज कन्फर्ड और इम्पोज्ड ऑन हिम अंडर दिस एक्ट. तो ये जो ऑफिसर्स होते हैं ये होते हैं एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, स्पेशल डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट टू अपॉइंट ऑफिसर्स ऑफ एनफोर्समेंट बिलो द रैंक ऑफ एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट. अब इनके पास पावर क्या है? दे हैव द पावर ऑफ सर्च एंड सीजर. सो द डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट एंड अदर ऑफिसर ऑफ एनफोर्समेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर shall take up for investigation the contravention referred to in section 13. एम्पावरिंग अदर ऑफिसर्स. सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ठीक लगता है तो वो और भी ऑफिसर्स को पावर दे सकती है, एंड विल डिस्चार्ज विद द ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट अकॉर्डिंगली. इनबाउंड एंड आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. जब बाहर की कंट्री इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है तो हम उसको बोलते हैं इनबाउंड इन्वेस्टमेंट. Investment done in India by other countries in any sector is termed as inbound investment. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया है थ्रू पॉलिसी फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. अलग अलग सेक्टर्स है, टेलीकम्युनिकेशन, पावर सर्विसेज, ऑटोमोबाइल्स, फूड प्रोसेसिंग, ऑयल, नेचुरल गैस, chemicals have attracted investment. India in current time has introduced many attractive policies for foreign investment in India. अलग अलग पॉलिसीज गवर्नमेंट ला रही है ताकि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज आर द मोस्ट बेनिफिटेड सेक्टर बाय इनबाउंड इन्वेस्टमेंट. अब आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट. मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमी ड्यू टू लिबरल फॉरेन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी have opened the doors of extensive investment in various profitable and financial secure sector. आउटबाउंड मतलब इंडिया जब बाहर की कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है तो दैट इज़ आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट. तो प्रेफरेबल डेस्टिनेशंस क्या क्या है? यूएस है, मीन्स डेवलप्ड इकोनॉमी, यूके, फ्रांस, जर्मनी, हांगकॉन्ग, बेल्जियम, स्पेन, कनाडा, गल्फ कंट्रीज, Latin American and African countries have huge investment opportunities in the field of mining, manufacturing and agriculture. Indian firms basic investment in foreign countries through merger and acquisition activity. Investment by Indian company is expected to increase backed by stable market conditions and considerable impact of the investment on local economies. So inbound मतलब क्या? जब इन्वेस्टमेंट बाहर की कंट्री इंडिया में करती है, एंड आउटबाउंड मतलब जब इंडियन कंपनी बाहर इन्वेस्ट करती है. रेगुलेशंस ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. तो पहले देखेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. जब फॉरेन कंट्री इन्वेस्ट करती है किसी बिजनेस में जो इंडिया में है तो वहाँ होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. अब जो इन्वेस्टर है वो फॉरेन का है, बट वो इंडिविजुअल हो सकता है, फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है. इट कुड बी इन एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, जॉइंट वेंचर एक्सेट्रा. अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है? इट रेफर्स टू क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स है जो एटलीस्ट 10% स्टेक कंपनी में होल्ड कर सकते हैं. इन्वेस्टमेंट कैसे होता है? बाय फॉरेन एंटिटीज़, NRIs, इंक्लूडिंग शेयर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी. FDI ओपन करने से FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस
ईजी हुआ एंड इट वॉज मोर एक्सेसिबल डेस्टिनेशन अमंग मार्केट्स. Foreign portfolio investment 2014 has considerably eased the entry norms of foreign portfolio investment into Indian capital market. With effective from June 1, 2014, over 1000 new FPIs have registered in SEBI. मतलब 2014 जून से लेके अगस्त 2015 तक न्यू 1000 FPIs इंडिया में आए थे, जिसके वजह से 12% इंक्रीज हुआ था इन द नंबर ऑफ FPIs और FIIs रजिस्टर्ड विथ SEBI. इंडिया कंटिन्यूज टू बी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल इन्वेस्टर्स. इंडिया अभी भी एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है बिकॉज ऑफ द एडेड स्टेबिलिटी ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट. इंटरनेशनल बिजनेस हाउसेस आर एक्सप्लोरिंग ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया. सेबी के कुछ रेगुलेशंस है जिससे वो बाहर की कंट्रीज़ के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है टू इन्वेस्ट इन इंडिया. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट. डेवलपिंग इकोनॉमीज हैव फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंडिया इज़ वन सच कंपनी. जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़, रियल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट एसेट्स हुआ यूजुअली म्यूचुअल फंड कंपनीज, हेज फंड कंपनी एक्सेट्रा. रिजर्व बैंक ने रेगुलेशंस फ्रेम किए थे जिससे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़े. सिंस 2003, SEBI has been registering FIIs and monitoring investment made by them through the portfolio investment route under SEBI. SEBI is like a nodal point in the registration of FII, and that will help in growing the foreign institutional investment in India, and which will lead to growth of our economy. Participatory note. Now what is participatory note? Participatory note मतलब P notes या PNs, ये एक financial instruments होते हैं which are required by investors or hedge funds to invest in Indian security without having to register with SEBI. मतलब बिना SEBI पे रजिस्टर किए if you want to invest, तो जो डॉक्यूमेंट है, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, उसको पार्टिसिपेटरी नोट बोलते हैं. Participatory notes are among the group of investments considered to be offshore derivative investment, that is ODI. Citigroup and Dutch Bank are among the biggest issuers of this instrument. जब भी किसी सिक्योरिटी से कोई डिविडेंड होता है, कोई कैपिटल गेन होता है, डिविडेंड मतलब सिक्योरिटी पे जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, और कैपिटल गेन मतलब 100 रुपये की सिक्योरिटी 110 की होना, तो 10 रुपये होता है कैपिटल गेन. तो ये वापस इन्वेस्टर के पास जाता है. इसलिए इंडियन रेगुलेटर्स नॉर्मली पार्टिसिपेटरी नोट के सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि फिर उससे इंडियन इकोनॉमी फ्लक्चुएट होती है, वॉलेटाइल होती है. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को इशू करते हैं ताकि वो दूसरे कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर सके, इंडियन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सके. This system lets unregistered overseas investors buy Indian shares without the need to register with SEBI. मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ without the need to register with Indian regulatory body, that is SEBI, तुम इंडियन सिक्योरिटीज़ परचेस कर सकते हो. तो इंडियन रेगुलेटर्स इंडियन रेगुलेटर्स इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते. भले ही इससे इंडिया में क्विक मनी आता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग होती है, बट दिस इज़ नॉट मच सपोर्टेड बाय इंडियन रेगुलेटर्स. So to invest in Indian stock market and to avoid cumbersome regulatory approval purpose, investor trade participatory note is used. क्यों यूज़ की जाती है? To avoid cumbersome regulatory approval process. इंडिया का जो cumbersome यानी हैवी regulatory process है जो काफ़ी टाइम लेता है, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? पार्टिसिपेटरी नोट्स यूज़ करते हैं. की टेकअवेज, ब्रोकर एंड FIIs मस्ट रजिस्टर विद SEBI. अब यहाँ हमने क्या दिखा था? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेटरी नोट इशू करते, तो बिफोर इशूइंग उनको SEBI पे रजिस्टर होना पड़ता है. पार्टिसिपेटरी नोट क्या करती है? इट अलाउज नॉन रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट. दे आर लाइक अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ अंडरलाइंग इंडियन एसेट. दे आर पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इन्वेस्टर रिमेनिंग एनोनिमस. जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट रजिस्टर हो जाता है तो अलग से अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टर को फिर से रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है. यूजिंग पार्टिसिपेटरी नोट वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है. सो दिस वाज पार्टिसिपेटरी नोट. एक बार फिर से सिनॉप्सिस गो थ्रू करते हैं. हमने देखा था रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बिना RBI के स्पेशल या जनरल परमिशन के कोई भी पर्सन फॉरेन करेंसी या फॉरेन सिक्योरिटी में डील नहीं कर सकता.
ही कैन डील ओनली थ्रू ऑथोराइज्ड पर्सन. कॉन्ट्रावेंशन एंड पेनल्टीज देखी थी. एडजुडिकेशन एंड अपील देखा है. डायरेक्टोरेट एंड एनफोर्समेंट. इनबाउंड एंड आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट. सेटिंग अप ऑफ जॉइंट वेंचर्स एंड होली ऑन सब्सिडरीज इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया. Regulation of FPI in India. Setting up of joint venture and wholly owned subsidiary is a capital account transaction. तो ऑब्वियसली इसमें RBI की परमिशन लगती है, बट अगर इस पर कोई कमीशन है तो कमीशन इज़ कंसिडर्ड एज अ current account transaction and that is prohibited under FEMA. After that we saw participatory note. So I hope you understood this topic. Thank you.